hello everyone. Today we have Prachi Sorte, and she's an entrepreneur. She's a social activist, and she has helped many women to come out of their problems and also inspired them. She's an award-winning entrepreneur. Through her struggles, she has proved herself, and she has made a mark in her industry. She is a founder of Skylark Automation and Skyzeel Technologies, which is a software company. तो आज हम प्राची से देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स करके एक पर्टिकुलर लेवल पे आए हैं, एंड व्हाट इज हर सक्सेस स्टोरी, व्हाट इज हर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एंड हाउ एज अ वुमेन हमें अपने आप को एम्पावर करना है. यस प्राची, आर यू देयर? Yes, very good morning. You are looking so beautiful, ma'am. Yeah. Ma'am. Yeah, I can't Yes. see your. Yeah, okay, great. तो प्राची, आप अपने लाइफ के सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए कि किस प्रकार से एज अ वुमेन, बिकॉज टुडे दिस इज अ वुमेन एम्पावरमेंट सेशन, किस प्रकार से व्हेन यू had issues in your life and now you are as an entrepreneur, you are managing your life very nicely with your relationships and everything. So how you just share your success story of the past, like what inspired you to be an entrepreneur and what are the struggles that you faced in your past? Yes. First of all, thank you so much for this wonderful question. I would like to introduce myself first. I am Prachi. I'm a simple human being, but passionate entrepreneur, soulpreneur. And I want to be passionate because I have seen lots of things in my life. I must say every coin has two sides, head and tail. So you must organize, you must observe two sides of that coin, pleasure and pain. These are the two important points of your life. So if you are in pain, understand your pain, observe it, crack it, go and hit the floor. If you are at pleasure point, you have to understand what are the nice things, what are the bad things. So that is called of observation skills. So first you need to nurture your skills, your abilities, and I have gone through lots of things, but I observe myself, what kind of things and by which I can enterprise myself. So first of all, if you have an entrepreneur skills, if you have that skills, business skills, you can do n number of things. So I must say observe, passion, and after that go and hit the floor. तो प्राची जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में बात करिए, बिकॉज हो सकता है ऑल लेडीज, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, मराठी और इंग्लिश, विच लैंग्वेज? Sure. या सो मैम, आई एम बोथ कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश बट नॉट मराठी. ओके फाइन, ठीक है. सो प्राची, आपके लाइफ के जो स्ट्रगल्स है एज अ वुमेन, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके लाइफ के स्ट्रगल्स से आप बाहर आए, क्योंकि आज सब महिलाएं हैं. सो दिस इज समथिंग which your story can inspire them. Why it is important to talk about problems? क्योंकि प्रॉब्लम से ही इंसान आगे बढ़ता है. तो जितना स्ट्रगल आपको हुआ है उतना ही सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, बट कई बार प्रॉब्लम्स आने के वजह से हम प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं एज अ वुमेन, अपने आप को वो एम्पावर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी डोंट गेट दैट एम्पावरमेंट नाइदर फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रेंड्स, और मे बी वी आर स्टक इन आफ्टर मैरिज. सो किस प्रकार के इश्यूज आपने फेस किए एज अ वुमेन, एज एन एंटरप्रेन्योर? First of all, as a women entrepreneur, I must say जेंडर इक्वालिटी. बट समाज में जो अभी जेंडर इक्वालिटी जो हम बोलते हैं, जो लोग कर रहे हैं, वैसे अप्लाई हो नहीं रहा है. दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोसाइटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बहुत सारे बैरियर्स या बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके यहाँ तक आई हूँ, और ये जर्नी है. इट इज नॉट लाइक अ 1 day और 2 days का टास्क. इट इज अ जर्नी. सो जर्नी का मतलब ही आपको खुद से लड़ना है, और दूसरों के साथ भी लड़ना है, बट स्मार्टली. सो मैंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस किए. मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारे इमोशनल आए. इमोशनल ऑब्स्टेकल्स से बाहर आना बहुत ही, वो बोल सकते कि हॉरिबल चीज है. तो इमोशनल बैरियर्स पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को भी कर सकते. तो इमोशंस को क्रॉस करना एक स्किल है. तो वो स्किल मैंने सीखा कि इमोशनली मैंने मेरा हौसला हारा नहीं.
मैंने सोचा कि नहीं, ये जो जर्नी मुझे मिली है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है मुझे क्रॉस करने के लिए क्यों दिए हैं, जो भी भगवान ने दिया है हमारे साथ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी मुझे डिवाइन पावर ने दिया है, जो भी मेरे पास है, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। बिकॉज सबकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आते। हर्डल्स किसको आते हैं? जिसको कुछ सक्सेस पाना है, जिसको बोलते ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। तो मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना कि मेरा यहाँ पे गोल क्या है, मेरे टारगेट्स क्या है। अकॉर्डिंगली मैंने मेरे टारगेट्स को पहचान के मैंने उसके बाद मेरा काम चालू किया। और मेरा जो फील्ड है वो ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन फील्ड में क्या करना पड़ता है? आपको खुद को साइट पे जाना पड़ता है, खुद को साइट पे वर्क करना पड़ता है। इन दैट केस अगर आप साइट पे जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है, बहुत सारे लोग वहां पे आ सकते हैं। तो वहां पे आपको खुद को संभालना है और ऐसे लेवल पे जाना है कि डिवाइन ने पावर करना है। इट्स नॉट कि बहुत इमोशनल होना है, बहुत प्रैक्टिकल होना है। नो, यू हैव टू बैलेंस फिजिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल। दिस 4 pillars आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वुमेन लाइफ। अगर आपको आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब बैलेंस करना है तो ये 4 जो पिलर्स है उसको आपको पक्का करना है। जैसे आपका कोई टेबल है, टेबल को आपको रखना है तो उसके लिए 4 पहियों की जरूरत है। विदाउट जो 4 पिलर्स है, अगर आप जाएंगे, सिर्फ फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग है बट मेंटली नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ अकॉर्डिंगली। So first of all, in each and every field, not only any homemakers or any outers, it doesn't matter. आप home में it's okay, but you have to balance your family, your mental ability. So nurturing your skills, balancing your abilities, these are the key tools for your success. Yes, true. And one more point you said that it's not very good to become emotional. हम काफी सारे बार इमोशनल डिसीजन लेते हैं बिकॉज वी एज वुमेन वी आर, हमारा नेचर ही है कि गिविंग 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 गिविंग, नर्चर करना है। ठीक है, तो कैन यू टेल समथिंग, कैन यू से समथिंग और कैन यू गाइड वुमेन कि हाउ यू कैन बैलेंस योरसेल्फ एज अ वुमेन इवन दो यू हैव इमोशनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज और मे बी व्हाटएवर इश्यूज यू आर फेसिंग। तो कभी कभी ओवर इमोशनल होना भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हम बैलेंस नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन वुमेन, दे जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, they are not focused on the solution. Whenever problems come in our life, we are cribbing about that. If the woman is not getting enough support, अगर उसको support नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि वो एनर्जी पूरी क्रिबिंग में जा रही है कि कंप्लेनिंग में जा रही है। तो उस पे आपको क्या बोलना है प्राची कि एज अ वुमेन हाउ वी शुड मैनेज आवरसेल्फ इमोशनली? That's very important because emotionally and mentally if we are strong, तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम सालों साल एक ही रिलेशनशिप में, एक ही दुख में हम स्टक रह जाते हैं। कैसे हमारे इमोशंस को बैलेंस करें हम? I would like to appreciate your question, Prachi ma'am. First of all, balance is the key in any field for your success, speed, progress, and happy life. So balancing is your life means what? You have to balance all qualities. See, nobody is perfect in this world. सब लोग इमोशनल नहीं हो सकते, सब लोग प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, सब लोग बैलेंस भी नहीं हो सकते। बट इन दैट केस यू हैव टू ऑब्जर्व योर इनर क्वालिटीज। जहाँ पे मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ वहाँ पे आपको स्टक करना है, थोड़ा सा जानना है कि कहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर स्किल, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर डायरी, योर डायरेक्टरी। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी नोटेड बिकॉज इफ यू नोट डाउन समथिंग, जैसे बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी, आदरणीय महात्मा गांधी, आदरणीय जो इंदिरा गांधी जी है, जो पावरफुल लेडीज है, वो क्या कर रही है कि कुछ पावरफुल स्टेट के लिए या आपके कंट्री के लिए कुछ डिसीजन लेना है, वहां पे मैं इमोशनल होकर डिसीजन लूंगी तो नोबडी विल एंटरटेन मी। इन दैट केस आदरणीय जो इंदिरा गांधी जी ने जो नियम लागू किए थे, जब जो निर्णय लिए थे, उनकी जो निर्णय क्षमता थी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, व्हाई? बिकॉज when you can do that, you have to balance your inner qualities, your decision making, your fast quality, abilities. So you have to observe किसने क्या किया था। आपको थोड़ा बोलते ना राइट अप करना पड़ेगा, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। बिकॉज मराठी में बोलते हैं वाचाल तर वाचाल। इट मीन्स व्हॉट? जर तुम्ही वाचलं तर तुम्ही वाचाल, म्हणजे तुम्ही समजा काही रीडिंग केलं तर तुम्ही स्वतःला वाचू शकता, आणि ते खरंच आहे। सो यू हॅव टू बॅलन्स इन ईच अँड एव्हरी फील्ड।
सो दैट इज द की. और प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस रखना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है पहले. अगर जहां पे आपको इमोशनल होने की जरूरत है वहां पे डेफिनेटली इमोशनली डिसीजन लेना है, बिकॉज ब्रेन एंड हार्ट कांट गो साइड बाय साइड. Because sometimes you have to take decision by heart. It's okay, but sometimes you have to go with brain only. There you can't go with heart because it will be harmful for your life or personal life or professional life. Anywhere you have to do and you have to go beyond the brink. Hit the floor, but with balanced attitude. Yeah. So you have said right that when you have to be emotional at that time, some decisions you have to take by heart and some decisions you have to take by your mind. So what are those decisions and how we can identify that कौन से डिसीजन बाय हार्ट लेने हैं, कौन से डिसीजन हमें बाय माइंड लेने हैं, कहाँ पे इमोशंस रखने हैं, कहाँ पे इमोशंस हमें नहीं रखने. देखिए, जहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल लाइफ है या कोई पर्सनल डिसीजन है वहाँ पे आपको जरूर आपका इमोशंस का इस्तेमाल करना है. जैसे आपकी फैमिली है, वहाँ पे आप ब्रेन से नहीं कर सकते, वहां पे आपको डेफिनेटली इमोशनली डिसीजन लेने. जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, जहाँ पे आपको लगता है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पावर. आपको आपकी पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन टेक दैट राइट डिसीजन. बिकॉज एक गलत डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर सकता है. सो यू हैव टू बी चेंज मेकर. व्हाई वी आर सेइंग वुमन चेंज मेकर. इट्स नॉट वन डे टास्क, इट्स अ प्रोसेस. And you have to go through that process. For that you need some learning, and learning is not one day. Each and every minute we are getting some learning, and we must learn, because if you learn then you can earn. Yes, True. Not only money. Earn means your potential, earning your name, earning your fame, earning your qualities, nurturing it, and then you can become a superpower woman. As powerful woman, you want to be a powerful woman. Why? We don't want to dominate any man. We are not here to dominate men. We are here to go side by side, feel them skin by skin. And it is what we can say, what is gender gap? Gender equality. It's like सबको एक साथ काम करना है, मिल बांट के खाना है और कंधे से कंधा मिला के काम करना है. उनका कंधा खींचना नहीं या उनको बोलना नहीं हमारा कंधा खींचो, नहीं. You have to balance. आपका खुद का सेल्फ एस्टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे आपको लगता है मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा ब्रेन से डिसीजन लेना है. बिकॉज आपका सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि एज अ इंडिविजुअल आप ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप सेल्फ एस्टीम आपका कम हो रहा है और वहाँ पे आप वैसे ही रिलेशन में जा रहे. So you can't survive yourself. But you have to survive yourself. Then only you can survive your relation. और रिलेशन को खींचने के लिए आप खुद को सेल्फ एस्टीम बोलते ना डब्बे में डाल के उसके बाद आप नहीं जा सकते. You can't go with that relationship. You have to break. Because in that case you have nurture. Means आपने बहुत कुछ दिया है. सिर्फ गिवर होने से अच्छा नहीं है. दोनों मैच होना चाहिए. जब आप कुछ गिव करते तो आपको मिलना भी चाहिए. So giving and receiving is a power of nature. That is a universal law. यूनिवर्स भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सिर्फ आप देते जाएंगे. आपको दया मूर्ति नहीं बनना है, दयावान नहीं है हम दयावान है, बट आपको कहाँ पे बनना है, जहाँ पे जरूरत है. ठीक है, एग्जैक्टली चाहिए. अगर आप देते रहेंगे तो सामने वालों को वैल्यू नहीं. इट डजंट मैटर. सो यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, स्टैंड फॉर योरसेल्फ. दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर इनर गाइडेंस. दैट्स इट. Yes. So that's what we as a woman we need to learn, that we need to value ourselves, because in the process of giving, देते रहे तब हम देते ही रहते, उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो we have to draw the boundary, we have to focus on ourselves. और हमारे फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनल मेंटल वेलबींग पे भी हमें फोकस करना है. तो जैसे कि आप इमोशनल मेंटल वेलबींग आपको मेंटेन करना है तो आपको मेडिटेशन करना है. सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेडिटेशन करना है या स्ट्रेस रिलीज करने के एक्टिविटीज करने. जो मैंने देखा है काफी सारे वुमेन नहीं करते. प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, बट उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं. सो मेरा यही एडवाइस है सभी लेडीज को आज कि आप अपने प्रॉब्लम्स को रिलीज करिए. रिलीज करने का एक तरीका ढूंढिए. आपके हॉबीज होंगे, आपको सिंगिंग, डांस, लोगों से बात करना, बुक्स रीडिंग, बाहर घूमना आपको पसंद है. सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ टू रिलीज दैट थिंग.
इफ यू बी इन दोज प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा नहीं बाहर आएगी। इसीलिए आपको मेडिटेट करना है। एंड फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टेल वुमेन इज कि आपको योगा, प्राणायाम, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज नो वन विल टेक केयर ऑफ यू इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज द ट्रूथ। आप अगर खुद की केयर नहीं करेंगे, आप सिर्फ देते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। जो आपको आगे ग्रो करना है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी आपको काम करना है, यू नीड पॉजिटिव एनर्जी। पर पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। क्यों नहीं है? इमोशनल इश्यूज है, गिविंग की क्वालिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि आप दे रहे हो और आप पूरी तरह खाली हो रहे हो, फिर आपको कौन देगा? यस। अगर आप दे रहे हो, वो एनर्जी सेव नहीं कर रहे हो अपने अंदर, तो आपके लिए वो एनर्जी कभी नहीं बचेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए। एग्जैक्टली। तो यू नीड टू सेव योर एनर्जी फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर वेलफेयर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इज सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालो। फैमिली है, काम है, सब कुछ है, बट उसमें से अपने आप के लिए, खुद के लिए आपको टाइम निकालना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So my next question is how to face men in business or in personal life who are dominating us or taking our power away. So there are people, it's not men only, but आज हमारे लाइफ में, आज हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, it can be men or women, औरतें और आदमी दोनों हो सकते हैं, जो हमारी पावर को ले रहे हैं, हमें they are not allowing us to be what we are. So how to face those manipulative, abusive people in our personal life or professional life? This type of people are always there, and especially अगर कोई लेडीज आगे बढ़ रही है तो उसको ज्यादा जेलसी, तो जेलसी ये लेडीज और लेडीज के बीच में ही जेलसी होती है बहुत बार। So the problem is I have seen that the ladies and ladies are jealous of each other. How to deal with that? First of all, I would like to say this question is relevant and nice question, because nowadays as a human you need to understand each and other. मैंने each and other क्यों बोला कि आपको खुद को भी देखना है। uni and verse. What is universe? uni means one, verse means अनेक, मतलब अनेकों में एक। आपको खुद को खुद देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ या आई हूँ। तो आप दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी उस तरह से देखेंगे। अगर आप खुद को देखेंगे, जैसे ये बोलते ना मिरर में देख रही हूँ, मिरर क्यों देखना है आपको कि मुझे खुद का आईना देखना है, मुझे खुद की क्वालिटीज देखनी है, खुद के अंदर झांकना है। अगर मुझे खुद की क्वालिटी पता है, अगर मुझे पता है कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, तो मैं दूसरों को जाऊंगी नहीं, बोलूंगी नहीं कि आपका अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट उसका एक ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर आपको अच्छे से बढ़ना है आगे या आपको पावरफुल बनना है, तो एक सिंपल ट्रिक है, अंडरस्टैंड योर इनर स्ट्रेंथ, योर क्वालिटी, योर पावरफुलनेस, योर डिवाइन एबिलिटी। देन यू कांट से एनीवन कि बाबा तुम्हारे अंदर ये स्किल नहीं है, मेरी जेलसी वगैरह, ईगो का डेथ कर दो। जरूरी नहीं है अहंकार चाहिए। अहंकारों से क्या होता है, जैसे कि ईगो क्लैशेस, ये शरीर जो है वही इंसान को गलत बनाते। तो हमें ये शत्रुघ्न के ऊपर काम करना है, बिकॉज हमारा जो इंसान की जो बॉडी है पंच तत्वों से बनी है। हर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए एक एपिटोम है। सो यू डोंट वांट टू हर्ट, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आगे वाले की क्वालिटी क्या है, तो उसको मैच करने के लिए मैं उनसे कैसे बेनिफिट कर सकती हूँ, उसका बेनिफिट कैसे करवा के दे सकती हूँ। सो आई डोंट थिंक कि आपको किसी से कॉम्पिटिशन करना है। अगर ठीक है कोई आपसे कर रहा है तो फॉरगेट इट। You have to compete with yourself. Each and every day you have to nurture yourself. Learn करना है, earn करना है और आगे बढ़ना है। So I must say, देखो competition है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग सेंट है या संत लोग भूमि पे है, नहीं। कुछ है, जैसे देव है, जैसे दानव भी रहते हैं, but you have to understand, ठीक है सामने वाले का नेचर ऐसा है, आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बिकॉज उसमें आपको अगर टाइम देना है तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे घटेगी। तो आपको ग्रोथ करना है या उससे फाइट करना है, या आप डिसाइड करो पहले। अगर आपको लगता है कि फाइट करके मेरा टाइम देके मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप भले 10 घंटा करो, 20 घंटा करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस आर्गुमेंट्स। बिकॉज वॉट एवर आई हैव सीन इन माई पर्सनल लाइफ, आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू विथ पीपल, आई लाइक टू गो फर्दर इन माई लाइफ।
एंड आई जस्ट गो अहेड एंड उनको मैं माफ करके आगे निकलती हूँ, क्योंकि माफ करना भी जरूरी है, बिकॉज ये सोल्स है और सोल्स को अगर माफ करेंगे तो आपकी आगे भी ग्रोथ होगी। तो ठीक है, अंडरस्टैंड है कि आपकी कंपटीशन है, बट यू हैव टू फाइट। आपको खुद को बेस्ट दिखाना है। अगर आप खुद को बेस्ट दिखाएंगे तो डेफिनेटली सामने वाले की मजाल नहीं है आपको बोलने की कि नहीं आप में ये क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव दिस क्वालिटी, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। टुडे आई डोंट हैव दिस थिंग बट टुमारो आई कैन डू दिस। सो यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। Yeah, let's wait for some time. I think there is some disturbance. Yeah. There's also some network problem. Can you hear me? Yes. So you have to understand your qualities. आपको अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम करना है, डेवलप करना है। ईच एंड एवरी डे यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। क्वालिटी गिव्स यू एग्जैक्ट मिरर। आपको अगर खुद का मिरर देखना है तो खुद देखिए, दूसरों का मिरर देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं है। मिरर में आपको आपका ही फेस दिखेगा। यू हैव टू सी योर फेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्वालिटीज, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, देन यू कैन डेवलप अदर्स। नाइस क्वेश्चन प्राची मैम। यस। तो आपको अपने आप को डेवलप करना है और ऐसे लोग आपको जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो आपसे जेलस है, उनको आपको इग्नोर करना है, उनको आपको माफ करना है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस प्रकार से उनके साथ डील करना है। If you waste your time on fighting with them, आपके घर में प्रॉब्लम्स है, ऑफिस में प्रॉब्लम्स है, फ्रेंड्स के बीच में इश्यूज हैं, so if you waste your time in fighting with them, again your energy is going to be exhausted और आपके पास खुद के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो लेडीज जैसे मैं ये कर रही हूँ कि मैंने काफी सारे लोगों को देखती हूँ, they just scream about their personal problems. That is not going to work. You need to leave it. आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे, अब्यूजिव लोगों को, जेलस लोगों को, इनके साथ आप रहोगे, इनके साथ आप फाइट करोगे तो आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट होगी। और तो कैसे है, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, जो लेडीज के कुछ क्वेश्चंस है कि किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स को डील करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला आपको पत्थर मार रहा है तो आप भी उसको पत्थर मारेंगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, तो सामने वाले में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये आपको अपनी स्पेस आपको डिफाइन करनी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यस, ये क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। पहले वी विल गो विद द क्वेश्चंस जो मैंने ये किए हैं, बाद में बाकी सब लोग आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग तब तक म्यूट रहिए। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बिजनेस करना चाहते हैं वुमेन, काफी सारे बिजनेस वुमेन, सो आई हैव सीन द इश्यूज दैट द फैमिली इज नॉट अलाउइंग देम टू डू जॉब, टाइम नहीं मिल रहा है, बिजनेस करना है बट वो शुरू नहीं कर रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देमसेल्फ, दे वांट टू डू समथिंग but they are not getting enough motivation either from husband, either from in-laws or their family. So how they should manage, whether then they should sit like that कि कुछ नहीं हो रहा है? So what is the solution? How, what perspective they should take while they want to do something and but no one is motivating them? So first of all हमें understand करना है कि हमारी लाइफ किस तरह से चल रही है, ऑर्गेनाइज करना है। जैसे हमारे लाइफ में कुछ लोग आते हैं तो वो लोग क्यों लाइफ में आए हैं, तो अगर आए हैं तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है, पोलाइटली करना है। बिकॉज सी हम्बलनेस जो बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पैशन रखना है बट पैशन के लिए आप किसी का दिल दुखा नहीं सकते। सो फैमिली मेंबर से ठीक है, फैमिली में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बट कुछ हद तक होनी चाहिए। उसको अगर कन्वर्जन हो गए उसको डोमेस्टिक वायलेंस में, वो गलत बात है, या फिर उसमें कुछ किसी को हर्ट हो रहा है तो हमें अंडरस्टैंड करना है, वहां तक नहीं जाना है। वो एक्सटेंट पे अगर कोई चीज जा रही है तो यू हैव टू मूव ऑन। सो अगर आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा है तो आपको उनको कन्विंस करना है पोलाइट वे में। बिकॉज देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम सब इमोशनल है, सब बोलते हैं ना कि सब में पैशन है, सब में कंपैशन है, तो आपको कंपैशन वे से या पोलाइट वे से उनको कन्विंस करना है कि अगर फैमिली में 2 लोग कमा रहे हैं तो 2 लोग कमाएंगे तो डेफिनेटली हमारी फैमिली की ग्रोथ होगी। अगर 1 पर्सन कमा रहे तो 1 पर्सन पे लोड आएगा। अगर उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं
तो वो केस में अगर दूसरा पर्सन उसको अगर सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज अ गुड पॉलिसी फॉर योर फैमिली। एंड अगर आपका फैमिली इज लाइक अ कंट्री, जैसे आपको कंट्री चलाने के लिए हर एक बजट रहता है, वैसे फैमिली को भी बजट चाहिए। मंथली एक आपको रेंट है, सपोज आपको कुछ करना है, आगे जाके बच्चों को पढ़ाई देनी है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, बिकॉज नाउअडेज एजुकेशन इज द बेस्ट मीडियम by which you can convert your normal skills into extraordinary skills. Without education, you can't say कि I can do this thing. No, education is must nowadays, and without money, you can't give education. So first of all, you have to understand your family responsibility. फीमेल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, मेल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। अगर उनमें वो स्किल्स नहीं है तो मुझमें क्यों नहीं है? अगर आपको आपकी क्वालिटी पता है, अगर आपको पता है मुझे करना क्या है, मेरी फैमिली में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप जरूर कन्विंस कर पाएंगे। अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो किसी काउंसलर से मदद लो, हेल्प लो, आस्क फॉर हेल्प इज ओके। नोबडी इज परफेक्ट। जैसे मैं भी परफेक्ट नहीं थी, बिकॉज मैंने खुद जाना, खुद पहचाना, बट मैं परफेक्ट क्यों थी? एक चीज में मैं परफेक्ट थी, मेरे फ्लॉज जानने में मैं बहुत परफेक्ट हूँ कि मुझ में ये नहीं है चीज, तो उसमें मैं परफेक्ट हूँ। बाकी चीजों में परफेक्ट धीरे धीरे बन रही हूँ, बट एक चीज में मैं परफेक्ट हूँ कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मुझे ये नहीं आता। क्यों नहीं आता है? मैं खुद से देखती हूँ कि आईने में मुझे ये चीज नहीं आती, आज मुझे ये आया, वाओ सो नाइस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी, आई एम द वर्ल्ड प्रिंसेस। मैं खुद को बोलती हूँ बिकॉज आई नो माई क्वालिटीज, आई नो आई एम अ पावरफुल पर्सन, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, बट यू कैन बी परफेक्ट विथ योर क्वालिटी। एंड मल्टीटास्किंग, why multitasking I'm saying? अगर आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज अगर अलाइन है तो यू कैन डू n number of things at a time. For that you should have your multitasking ability, multitasking skills. उसके लिए आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज अलाइन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। प्राची मैम बार बार बोल रही है, पहचान स्त्री शक्ति फाउंडर प्राची मैम, कि डू meditation, go 7 chakras. Why? If you are not aligning your 7 chakras, your body आपकी अलाइन नहीं तो आपका सोल कैसे अलाइन होगा आपके खुद से? तो आपको खुद का सोल, बॉडी और माइंड भी अलाइन करना है। सिर्फ दोनों अलाइन है, जैसे स्त्री शक्ति है, त्रिदेव है। क्यों बोलते हैं त्रिदेव है? बिकॉज त्रिनेत्र, बिकॉज अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, एक ही क्वालिटी बहुत बहुत कर रहे हैं, डायनेमिक है, मगर आपको कुकिंग आती नहीं है, तो क्या फायदा है? बाहर आप अच्छा कर रहे हैं, घर में आपको अगर आपको प्रॉब्लम आया, घर में आपके पास मेड नहीं है, आप अच्छे बैठे रहेंगे, नहीं मुझे कुकिंग आता नहीं, मैं ऑर्डर करूंगी, ठीक है, आप एक दिन कर सकते, 2 दिन, कितने दिन आप ऑर्डर करेंगे? तो यू हैव टू बी बेस्ट कुक। बेस्ट कुक मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ शेफ बनना है, आपके खुद के लिए खाना पकाने के लिए कौन सी शर्म? तो कुकिंग इज ऑल्सो अ स्किल, अ टारगेट, अ डिफरंट मैग्नेट। बिकॉज कुकिंग में से जैसे बोलते हैं ना कि मराठी में हमारे बोलते हैं कि जर हजबंडला खुश करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला कुकिंग खूप चांगलं करायला आलं पाहिजे। तर का फक्त हजबंडला खुश करण्यासाठी, स्वतःला खुश करण्यासाठी का नाही? स्वतःला खुश करण्यासाठी चांगले चांगले पदार्थ करा, खा। नॉट नेसेसरी की आपण दुसऱ्यांना देणार तेव्हाच आपण खुश, स्वतःला पण करा, दुसऱ्यांना पण द्या। गिव्ह अँड टेक, गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, घ्यायला पण शिका। आपण आतापर्यंत काय केलंय? देणं, पण आपण घ्यायला पण शिकलं पाहिजे। घ्यायला शिकायचं म्हणजे की दोन्ही बॅलन्स साईड करायचे, जेणेकरून समोरच्यावर पण लोड नाही आला पाहिजे जास्त द्यायला। सिंपल। यस। तो ऑल द लेडीज, आप सुन रहे हैं सभी, जो प्राची बोल रही है, काफी सारी चीजें आपको अभी ट्रिगर भी हो रही होगी कि माइंड, बॉडी, सोल को आपको एक्टिवेट करना है, मल्टीटास्किंग करना है आपको, और अगेन खुद के लिए आपको टाइम निकालना है। जैसे कि अभी पहचान स्त्री शक्ति है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग सेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, किस प्रकार से अपना बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना टाइम मैनेज करते हैं। जो स्किल्स आपके पास नहीं है वो आपको सीखनी है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको सीखना है। आप यू कैंट कीप ऑन क्राइंग कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। यू हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन, देन ओनली यू कैन एम्पावर योरसेल्फ। आज तक इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने सीखा है, तो दे हैव लर्नड। नो वन इज, कोई भी बाय बर्थ सब सीख के नहीं आता है। इमोशनल इश्यूज है तो इमोशनली आपको कैसे हैंडल करना है, मेडिटेशन करो। टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है वो करो। अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो जैसे अभी प्राची ने बोला कि आप उनको प्यार से बताइए,
और अगर वो उससे भी सुन नहीं रहे तो आप यू कैन डू अ काउंसलिंग सेशन विद देम, एंड अगर वो उससे भी नहीं हो रहा है वर्कआउट, देन यू हैव टू फाइंड योर ओन वे टू डू थिंग्स, बिकॉज आप किसी के लिए रुक नहीं सकते हैं अपने करियर के लिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ, आपकी ये लाइफ है, आपको डिवाइन ने ये लाइफ दिया है, एंड इस लाइफ के लिए यू आर ग्रेटफुल। इस लाइफ में आप कुछ करने के लिए आए हैं, तो डोंट वेट इफ नो वन इज सपोर्टिंग यू, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। नो वन इज गोइंग टू स्टैंड फॉर यू। आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं रहेंगे, जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हो, खुद को अलाइन कर रहे हो, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, और यही सच्चाई है। जिस दिन आप वो रिजल्ट्स दिखाएंगे तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, पहले आप करो, बाद में धीरे धीरे वो सपोर्ट करेंगे। उनको लगेगा ये कुछ कर रही है, इससे हमें फायदा हो रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है फैमिली में, तो वो आपको बाद में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका ही उसमें अच्छा हो रहा है। तो पहले आपको खुद को सपोर्ट करना है। यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द वेज, कंसल्ट अ एक्सपर्ट। पहचान स्त्री शक्ति में आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स है, उनसे आप काउंसलिंग लीजिए, उनसे आप बात करिए कैसे आगे बढ़ना है। वी हैव वुमेन काउंसलर्स, वी हैव बिजनेस एक्सपर्ट्स, वी हैव हेल्थ एक्सपर्ट्स। ये सब हेल्प आपको मिल रही है, आपको हेल्प लेना है। यू डोंट हैव टू क्रिप, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सिर्फ अपनी लाइफ को खराब करो। सो ये सभी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। आज वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम ले रहे हैं। तो मैं आपको प्राची कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि जब भी आपके लाइफ में अभी जब जैसे डाउनफॉल आता है, what are the 3 qualities that you need to keep whenever there is a downfall in your life? What are the 3 qualities? You feel alone, you feel like no one is listening to you, no one is understanding you, you feel emotionally down. So what are the 3 qualities that you should imbibe in yourself as a woman so that you can face any challenges of your life? Yes. What are the 3 qualities? 3 qualities like a 3 सूत्री। 3 क्वालिटीज आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज कर सकती है। सबसे पहला है पैशन, कंपैशन एंड लव। अगर आप में पैशन है तो आप दुनिया में कोई भी चीज, भले जीरो आप है बट आप हीरो बन सकते हैं, आप हीरोइन है तो हीरोइन बन सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, आप में पैशन रहना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है, मेरा गोल है, सेट करो गोल। डेफिनेटली ये पैशन फॉलो कि आपको इतना आगे लेके जाएगा कि कोई आपको हरा नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी पावर आपको, सुपर पावर भी, सुपर नेचुरल पावर भी आपको हरा नहीं सकती, बिकॉज आप में वो पैशन है। आपको गिर के भी खड़ा रहने की आप में वो क्वालिटी है। तो दैट इज कॉल्ड पैशन कि ठीक है मेरे पास आज ये नहीं है ना, आई अंडरस्टैंड माई क्वालिटी बट आई हैव टू अचीव। डोंट लूज योर होप्स, यू हैव टू अचीव। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। कंपैशन, व्हाई कंपैशन? अगर आपको दूसरों को देने के लिए कंपैशन है, ठीक है, दूसरों की एक क्वालिटी है, दूसरों के पास एक चीज नहीं है। कंपैशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ देखना है कि इसमें ये नहीं है। कंपैशन मतलब आपको वो सह के देखना है, आपको देखना है कि उस जगह मैं हूँ, उसकी ये क्वालिटी, उसमें ये प्रॉब्लम है, वहां पे मैं हो सकती हूँ कल। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो गई तो मुझे भी कल ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करना है कंपैशन। अगर दूसरों को कंपैशन करेंगे तो डिवाइन विल डेफिनेटली गिव यू दैट शॉवर लव। और लव, अगर आप में प्यार है, प्यार उमड़ रहा है सबके लिए, सब मानवता के लिए कि बाबा इसको भी प्यार करना है, इसको भी, ठीक है उन्होंने गलती की, प्यार करो। प्यार से बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। जैसे गांधी जी, आदरणीय महात्मा गांधी, उन्होंने क्या बोला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक चीज मुझे आदरणीय हमारी जो नोबेल पुरस्कृत, बहुत बहुत मैं उनका आदर करती हूँ, मतलब मैं नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड कर सकता है, मदर तेरेसा, कितना बड़ा एपिटोम है वो। उनके दिल में से प्यार जब उमड़ रहा था तो लोग खुशी के मारे पागल हो रहे थे, बिकॉज कंपैशन और लव की वो मूर्ति है। फेमिनाइन, उनका मतलब ही है कि आपको लव देना है लोगों को। आप यहाँ पे लव स्प्रेड करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमें ठुकरा रहे, उनके पास आगे आगे जाके लव करना। नो, लव इज व्हाट, रियल लव, अनकंडीशनल लव। किसी से भी हमें कंडीशन डाल के प्यार नहीं करना है कि इससे मुझे, अगर प्राची मैम है, पहचान में मैं जाऊंगी, मुझे कुछ पे मिलेगा तो ही मैं जाऊंगी। नो, प्राची मैम है, वहाँ पे वो एक अनकंडीशनल प्यार है, उनसे अलग लेवल का प्यार है, वो अनकंडीशनल है। वहाँ पे कंडीशन कोई नहीं चाहिए।
कि ठीक है कंडीशन रहेगा तो भी मैं जाऊंगी। अभी आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसे पहचान स्त्री शक्ति एक बड़ा सा ब्रांड बन रहा है, ऑलरेडी है और बन चुका है। तो अभी इस पहचान शक्ति के साथ हम कोलैबोरेट करके एक अच्छे से पूना में एक अच्छे होटल में एक प्रोग्राम रखने वाले। वहां पे सभी जो लेडीज है जिसको जिसको भी आना है, जो भी फॉर्मेलिटी जो प्राची मैम आपको बता देगी, वो आने के बाद वहाँ पे ग्लोबल टाइकून्स आएंगे, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स की लेडीज आएंगी, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो वहाँ पे हर क्वालिटी की वुमन रहेगी। जैसे कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं, कोई हीरो नहीं है, सब सेम लेवल है। See, this designation is what? Leadership is not about title. It's not about designation. Leadership is about inspiring people. It's not dominating anyone. आप लीडर है, वही लीडर सच्चा नेता कौन है? कि जो लोगों को साथ में लेके चलता है, उनके साथ बैठ के खाना खाता है। That is a true leader. And true leadership qualities अगर आपको अपने अंदर लानी है तो आपको बहुत सारा स्टडी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वो आप स्टडी रिसर्च करो, आपके कॉर्पोरेट लेवल के लिए करो आप, बट आपके अंदर से प्यार आना चाहिए। पहला लीडर को सबसे पहले प्यार देने की जरूरत है। वही सच्चा लीडर जो सबको प्यार करेगा, सबको माफ करेगा, वो सच्चा लीडर है। सो आई मस्ट से 3 क्वालिटीज, पैशन, कंपैशन एंड लव कैन लीड द फ्लोर। यस, सो जैसे अभी प्राची ने कहा कि यू हैव टू बी अ लीडर, है ना। सो लीडर बनने के लिए आपको लोगों को इंस्पायर करना है, आपको लोगों को डोमिनेट नहीं करना है। एंड इवन इन वुमेन एम्पावरमेंट हम यही कर रहे हैं कि आप सामने वाला क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उनको आप छोड़ दो। अगर वो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको रहना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी इन एनी अब्यूजिव एनवायरमेंट, बट आपको डोमिनेट भी नहीं होना है और डोमिनेट करना भी नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो don't get dominated by anyone and don't dominate anyone. That is what is the true leader, कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, डोमिनेट नहीं कर रहे हो। एंड आपके अंदर पैशन है, कंपैशन है और प्यार है, तो आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स को आगे फेस कर सकते हो, कोई भी चैलेंजेस को। एंड अगेन टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। मेनी पीपल फील दैट काउंसलिंग करना है, हीलिंग करना है तो इट इज नॉट गुड, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, या प्रोएक्टिवली खुद के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालना है। आज का मैसेज यही है कि खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद का हीलिंग करिए, खुद के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालिए। गो टू अ एक्सपर्ट, गो टू अ काउंसलर, कम टू पहचान, यू विल गेट सॉल्यूशंस, यू विल गेट सम हीलिंग। जॉइन द वुमेन एम्पावरमेंट सेशंस। अभी हर महीने में हम 2 बार ये सेशंस रख रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो टुडेज टॉपिक वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग अ लीडर and also managing your personal life as a woman leader, as a business woman. नेक्स्ट इसमें हम अलग अलग लेडीज को बुलाने वाले हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात करेंगे, बिजनेस पे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करेंगे। तो ये सेशंस आप अटेंड करते रहिए, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स के साथ आप जुड़ के आपको एम्पावरमेंट कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि आप उसी एनर्जी में रहते हो, अपने ही एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में रह रहे के वही चीजें आपके अंदर घूमती है। तो नया कुछ आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पाता है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगी। इसीलिए यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द ग्रुप्स लाइक पहचान, और भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, वहां भी कनेक्ट करिए। आई एम नॉट सेइंग दैट पहचान इज द ओनली ग्रुप, देयर आर मेनी ग्रुप्स, दे आर हेल्पिंग वुमेन इन ग्रेट वे। गो एंड हेल्प देम, go and take support from them. There is support available. Don't feel alone. Don't feel alone. If you feel alone, then you become weak. Be with positive minded people. Be with entrepreneurs जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। भले ही वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे, बट आप सक्सेसफुल लोगों के साथ, लेडीज के साथ रहिए, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए। जिन लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आप बनोगे। आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्रीबिंग कर रहे हैं, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स अगर आपने रखे हैं, लेडीज के बीच में होता है ना गॉसिपिंग फैमिलीज का, अगर आप ऐसे लेडीज के साथ रहते हैं तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू नीड टू बी विद दोज पीपल जहाँ पे आपको जाना है, उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना है। देन यू कैन बिकम अ ट्रू लीडर, क्योंकि आपसे इंस्पायर होने के लिए पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ ट्रू लीडर, यू हैव टू बिकम दैट, तभी लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राची, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस, जिन लेडीज को बिजनेस चालू करना है
उनको मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए क्या, किस प्रकार से मार्केटिंग ब्रांडिंग करना है, जो भी सपोज किसी का हीलिंग का बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस है, तो किस प्रकार से अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग को, नेटवर्क को और बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए एज अ वुमेन, व्हाट यू कैन डू, प्लीज शेयर सम टिप्स ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग। डेफिनेटली सी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और जो मैं इंडस्ट्री में रही हूँ 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, बहुत छोटे उम्र से मैंने काम चालू किया है और अच्छे लेवल पे अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, पैन इंडिया किया, आउट ऑफ भी कर रही हूँ अभी भी, और अभी मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ इंटरनेशनल। सो मुझे एक ही चीज आपको बोलना है, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज नथिंग बट योर ट्रू आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी जब आप कर सकते हैं, पहचान, एग्जाम्पल पहचान को ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहचान एक पहचान ही ब्रांड है। वो उसका ब्रांड जो फिगर है, जो ब्रांड का जो चेहरा है, वो प्राची मैम है। तो प्राची मैम को देख के ऑटोमेटिकली लोग आएंगे पहचान, बट पहचान का नाम लोगों को पता नहीं है, बट प्राची मैम है इसके लिए पहचान है। तो पहचान का ब्रांड कब बनेगा? अगर उसके एंटरप्रेन्योर, उसकी बिजनेस ओनर प्राची मैम अगर पैशनेट वे से उसको उसके ऊपर काम करेंगे, उसको उसके ऊपर काम करने के लिए खुद को उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको खुद की पहचान खुद करनी पड़ेगी, जो कि आपने ऑलरेडी की है। सो दैट इज अ ट्रू आइडेंटिटी। सो ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको उनके सामने आपका एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये ब्रांड उन्होंने किसी को जाके बोला नहीं, मार्केटिंग किया नहीं कहीं पे जाके कि इसमें ऐड करो, उसमें जाओ, नहीं, लोग उनको आके पूछ रहे हैं। अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहचान क्या है मैम, हमें आना है, क्यों आना है? बोल रहे हैं कि प्राची मैम। अरे हाँ, ओके, प्राची मैम, प्राची गौतम मैम, उन्होंने देखा, गूगल किया। गूगल क्यों करते हैं? जब लोगों को पता नहीं पहचान क्या है, पहचान तो कॉमन वर्ड है, बट जब प्राची मैम के साथ पहचान जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड हो जाएगा, बिकॉज उसके पीछे जो फेस है, जो प्राची मैम का है ना, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं चलती, वो लोगों के ऊपर चलती है। उसमें कौन से लोग हैं, कौन से लोग बात कर रहे हैं, कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, अरे ये लीडर ने ये बोला, ये लीडर ने वो बोला, तो मुझे ये पार्टी अच्छी लगती है। वो पार्टी अच्छी नहीं लगती लोगों को। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीज का नाम नहीं ले रही, बट पार्टी के जो ओनर्स रहते हैं, जो फाउंडर्स रहते हैं, उन्होंने वो सिर्फ बुनियाद की रहती है, तभी वो पार्टी चलती है। सेम लाइक दैट कोई कंपनी है, जैसे टाटा बिरला, ये कंपनी क्यों चल रही है? उनके जो फाउंडर है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उनका ब्रांड उनके काम के थ्रू बनाया है। तो ऑटोमेटिक आपका काम ही आपका ब्रांड है, आपको कहीं पे मार्केटिंग में जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक। बट नाउअडेज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपका मार्केटिंग भी होना चाहिए। So for digital marketing, I must say you should integrate with top agencies or normal agencies where you can pay them with handsome amount। आपको देना है तो दे सकते हैं, बट आपको डिजिटल प्रमोशन करना बहुत जरूरी है nowadays, बिकॉज ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी आपको करना जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन इज अ फेस ऑफ योर बिजनेस, गूगल इज अ फेस ऑफ योर बिजनेस। अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं मेरा तो ब्रांड है, मैं खुद अच्छी हूँ, नो। लोग आपको पहचाना तब चालू करेंगे जब लोग आपको गूगल करेंगे। गूगल करने के लिए आपको गूगल रैंकिंग में आना पड़ेगा, उसमें आपको टूल्स है। जैसे मैं खुद गूगल सर्टिफाइड हूँ, तो मैंने खुद एजुकेशन लिया, उसके बाद मैंने खुद का स्टडी किया, मेरे ब्रांड में क्या करना है, कौन सी चीज कमी है, तो करो उसके ऊपर काम, और उसके ऊपर काम करने के बाद ऑटोमेटिकली विल गेट दैट अबंडेंस, ऑटोमेटिकली गेट। यस, और मेरा सजेशन ऐसे है कि ज्यादा से ज्यादा आप वुमेन बिजनेस ग्रुप और बिजनेस ग्रुप में भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी सारे नेटवर्क, आपका नेटवर्क बढ़ाना है। आपको काफी सारे लेडीज, एक जैसे नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, आपको बिजनेस ग्रुप्स में जाइए, आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स आप फॉर्म कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताइए, जहाँ भी आप जा रहे हैं अपनी विजिटिंग कार्ड को कैरी करिए, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, तो बहुत सारे लेडीज ये बोलते हैं मैं हाउस वाइफ। ये क्यों बोलना है आपको मैं हाउस वाइफ हूँ? आपको डिवाइन ने कोई क्वालिटीज दी है, आपके पास एक स्किल है, उसको आप प्रमोट करो। भले ही आप होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, तो आपको आपके विजिटिंग कार्ड हमेशा कैरी करना है, आपको हमेशा अपनी आइडेंटिटी हमेशा आपके साथ कैरी करनी है। यू गो एंड कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स, यू गो एंड कनेक्ट विद बिजनेस ग्रुप्स। वुमेन नेटवर्किंग के बहुत सारे क्लब्स हैं, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। इवन पहचान के भी बिजनेस ग्रुप है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। बिजनेस मीटअप भी पहचान के हम करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग बिजनेस वुमेन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और एक दूसरे से उनको बिजनेस मिलेगा।
तो और अपने ही जोन में नहीं रहना है, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपको ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है, तो रोज 10 लोगों से बात करो अपने बिजनेस के बारे में। मैं ये करती हूँ, मेरे ये टेस्टिमोनियल्स है, मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया है, इतना उनको फायदा हुआ है। तो आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी चीजें आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी एंड लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल बिजनेसेस। बाकी लोगों ने कैसे अपना ब्रांड बनाया है, वैसा एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करना है आपको, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग किया तो आप यहाँ बैठ के फॉरेन में भी प्रोडक्ट्स अपने भेज सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्राची, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मुझे और एक चीज सिंपल सजेशन उनको देना है जिसके पास जो एफर्ट नहीं है, सपोज आपको वेबसाइट के लिए पैसे नहीं है। देखो एडवर्स सिचुएशन आ सकती है, एवरी टाइम यू कांट प्रिडिक्ट कि मेरे पैसा रहेगा नहीं रहेगा, इट्स ओके। आप एक काम करो, सिंपल है, मोबाइल आपके पास है, आप फ्रेंड्स लोगों से चैट करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन चैटिंग, यूटिलाइज दैट टाइम, वैल्यूएबल टाइम इन योर बिजनेस। सो फॉर दैट आपको व्हाट्सएप बिजनेस का एक प्रोफाइल आता है, आपको क्रिएट करना है, कैटलॉग क्रिएट करो, सिंपल कैटलॉग है आपका, बनाओ, आपका कुछ छोटा छोटा प्रोडक्ट है उसका कैटलॉग व्हाट्सएप का बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, और उसमें आप पेमेंट का ऑप्शन भी आपको आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट B2B, B2C और सबसे इम्पोर्टेंट C2C एंड P2P, पर्सन टू पर्सन आप कनेक्ट हो जाओ हार्ट से। जहाँ पे भी, जैसे प्राची मैम ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि जहाँ पे जाते हो आप कैरी करो कार्ड और कम्युनिकेट करो। देखो कम्युनिकेशन ऐसा पावरफुल टूल है कि आपको हार्ट में लेके जाता है किसी के भी। तो कम्युनिकेट करो, प्यार से बोलो आपका बिजनेस क्या है, पहले उनके बिजनेस के बारे में पूछो, पहले आपका ही मत बताओ कि मैं ये करती हूँ। इट इज लाइक ब्रांडिंग योर बिजनेस, बट अंडरस्टैंड देयर बिजनेस ऑल्सो। जैसे मैं क्या बोलूंगी, प्राची मैम का ब्रांड, आपका ब्रांड क्या है मैम, आप क्या करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे पूछेंगे कि आपका क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एक सिंक्रोनिसिटी होती है उसमें, और एक बोलते ना, एक लयबद्धता, मराठी में बोलते लयबद्धता हो जाती है उसमें। तो आपको ताल से ताल मिलाना है, आपको आपका ही बोलते जाना है, बोलते जाना है। दैट इज अ पब्लिसिटी मार्केटिंग नहीं। वी आर नॉट हियर टू मार्केट आवर प्रोडक्ट, वी आर हियर टू प्रूव आवर आइडेंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा सिंपल चीज है कि आपको गूगल के ऊपर फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप फ्री वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आपको क्लिक टू एड रहते हैं, वहां पे आपको मैक्सिमम जगह पे आपको खुद के एडवर्ड्स डालने, गूगल एडवर्ड्स। उसका मैंने कोर्स किया, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंटली टेक्निकली बता रही हूँ। आपको वीडियो कैंपेन करने हैं, ऑडियो कैंपेन करने हैं, अलग अलग कैंपेन करो, ऑनलाइन करो। नाउअडेज आप एक जगह पे बैठ के लाख लोगों को कनेक्ट हो सकते हैं। सो डू दैट। Yeah, nowadays everything is there on YouTube. अगर आपको सोशल मीडिया में कुछ सीखना है, there are free courses available of digital marketing. उसको सीखिए। सोशल मीडिया पे फेसबुक आप खुद एड्स पोस्ट कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप यूज कर सकते हो आप मार्केटिंग के लिए, आपके रेफरेंसेस आप बिल्ड कर सकते हो। मार्केटिंग के अभी बहुत टूल्स है और फ्री टूल्स है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, हाउ टू पुट एड्स ऑन फेसबुक, आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे। आपको पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद सीखो। आपके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग आप खुद कर सकते हो। रोज 1 घंटा आपके मार्केटिंग के लिए आप दे सकते हो। किसी के पास पैसे नहीं है तो ये कर सकते हैं। देखिए पैसा नहीं है, बिजनेस पैसे से नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों के पास पैसे है बट उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो करोड़ों रुपए भी रहे तो भी लोग लॉस में जा रहे हैं आज। दिस बिजनेस जो भी प्रोडक्ट्स है आपके, पहले तो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस जागरूक करना है। ये डिवाइन प्रोडक्ट या ये क्वालिटी या ये स्किल जो मैं आज मेरे अंदर डिवाइन ने दिया है, ये इससे मैं पैसे कमा सकती हूँ, इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूँ, इस पे आपको सोचना है। कुकिंग आता है, कुकिंग को कैसे मोनेटाइज करना है, ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग को कैसे मोनेटाइज करना है। तो आपको वो ग्रोथ की तरफ जाना है। डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है, फ्री है, यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी। आप खुद सीखिए, खुद करिए अगर आपके पास पैसे नहीं है। ऑल दीज आर एक्सक्यूजेस दैट वी गिव टू आवरसेल्फ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बिजनेस चालू नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं बिजनेस चालू नहीं कर सकती, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, या मेरे हेल्थ प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में, हम ये सब एक्सक्यूजेस है हम अपने आप को दे रहे हैं माइंड को आगे नहीं बढ़ने के लिए, बिकॉज हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल रहे। वी वांट टू बी इन द कंफर्ट जोन, वी लाइक क्रिबिंग, वी लाइक कंप्लेनिंग। हमें नया नहीं सीखना है कुछ, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है, 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताना नहीं है, लोग सुनेंगे नहीं ऐसा हमको लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फेलियर होने के लिए तैयार नहीं है, फेल होना नहीं है हमें, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको लगती है एंड दैट्स व्हाई हमारा कॉन्फिडेंस जो है ये हमारा लो होता है। तो आपको फेलियर के बारे में सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि बस मुझे करना है, डू इट। मनी नहीं है, विदाउट मनी भी आप बिजनेस कर सकते हो।
You don't need money to start your business. Everything is free. Free tools are there. So all the ladies who want to do business, who want to be entrepreneurs, don't give this excuse कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे नॉलेज नहीं है. Now everything is there on YouTube. Everything is there available for free. Invest your time in learning. Invest your time in learning. That is what you need to do as a woman entrepreneur, as a self-employed person. Yes. So today, now what we will do is we will take some questions. Yes. So yes, कोई कुछ questions पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो. प्राची मैम, आई Yeah. वांट टू आस्क क्वेश्चन. हाँ. मैम जैसे मैम कह रही थी ना कि दूसरों को रेस्पेक्ट देनी है अगर लेनी है, ठीक है, हम जैसे हमने रेस्पेक्ट देते थे पर उसके बाद भी रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया जा रहा है, तो फिर मन करता है कि हम दूसरों को रेस्पेक्ट ना दें और मतलब हमारी फैमिली को इंसल्ट करना, हमें अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना, तो ये टॉलरेट करते करते मन ना वो फेड अप हो जाता है. Yes, कुछ yes, लोग- I have a question. Yes. मैम ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं कि अगर वो इस टाइप के हो तो कैसे बड़ा डिफिकल्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. जैसे मदर फिगर हैं और रियल ब्रदर इन लॉ हैं और मदर फिगर की फैमिली है और उनके जान पहचान के लोग हैं, कलीग्स हैं. Okay. प्राची मैम. हेलो. इस केस में आपको यही है कि जब आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको अब्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे प्राची ने पहले ही बोला, यू हैव टू चॉइसेस. सामने वाला पर्सन चेंज होने वाला है क्या, यही आपको पूछना है खुद को. आइदर यू एक्सेप्ट और यू फाइट. मैम फाइट नहीं करते, मेरे को फाइट करने का मतलब मेरे संस्कार नहीं है, पर दूसरा जब कोई फाइट करने के लिए आगे से आगे खड़ा रहता है तो कहाँ तक अवॉइड करें. इश्यूज क्रिएट डेली बेस पे. वही मैं बोल रही हूँ. आप अभी मैम ने बहुत खुद ही उन्होंने आंसर दिया कि मेरे अच्छे संस्कार है. तो देखो कितना अच्छा आपने वर्ड बोला है. तो हमें अपने संस्कार दिखा नहीं, उनके संस्कार क्या है वो दिखा रहे. तो आपने आपके संस्कार दिखा है कि मेरा क्वालिटी है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, तो दैट इज गुड. सो योर सोल विल बी डिवाइन सोल. सो आपको अगर वो लेवल पे जाना है तो देखना है कि ऑब्जर्व करना है. ठीक है, वो एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 1 बार करेगा, तीसरी बार भी हो रहा है तो आपको मूव ऑन करना है कुछ चीजों से. आपको आपका डाइवर्ट माइंड शिफ्ट करना है. आपको वहां पे आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं करनी है. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम देयर, यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी ऑन पॉजिटिव थॉट. जैसे प्राची मैम ने बोला, तो पॉजिटिव थॉट्स कैसे बोल सकते हैं कि आपको कुछ दूसरी जगह पे जाके मेडिटेट करना है या दूसरा कोई काम करना है या वहां पे आंसर ही नहीं देना है. इग्नोर करेंगे तो कौन आएगा आपके पास बार. अगर आ रहा है तो आपको कुछ अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ अच्छी काउंसलिंग सेशन लेनी पड़ेगी. बिकॉज अगेन एंड अगेन आपके साथ अगर वही चीज रिपीट हो रही है तो दैट इज डिफरेंट. बट अगर 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट इग्नोर एंड यू हैव टू एक्ट फॉर योरसेल्फ. सिंपल है. मैम ये एक दो बार नहीं हुआ ना, ये रिपीटेड पैटर्न्स ही हो रहा है. मेरी मतलब 29 नवंबर 2013 में शादी हुई थी, तो बस 6-8 महीने चैन से बीते, उसके बाद से चालू हुए प्रोग्राम. ओके. फादर इन लॉ समझते थे तो वो एक्सपायर हो गए, तो अब मतलब सब ऐसे ही लोग हैं पास में. हस्बैंड को जब वो ब्रेन वॉश करते हैं तो फिर उनसे एकदम क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है तो फिर वो अपसेट हो जाती है. फिर वो आगे से आगे मेरे को हर्टफुल कमेंट्स करेंगे. उसमें कैसे आपको एक फैमिली काउंसलिंग से सेशन कुछ लेनी पड़ेंगे मैम. जी मैम, हमारे जो काउंसलिंग सेशन है उनको एक बार दे देंगे. तो फैमिली काउंसलिंग आप करिए. हो सकता है क्योंकि एक अभी आंसर में आपको एब्रप्ट कुछ दूंगी तो उसमें आप वो अप्लाई करने जाएंगी तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू. बट इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पर्सनल 1-to-1 सेशन प्राची मैम इनका ले लेंगे और वो सेशन में इनके जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अंदर की दिक्कत है वो क्लियर कर डालते. बिकॉज ये बहुत जरूरी है. अगर आप वही चीज दिमाग में रखेंगे और काम करते रहेंगे तो आपका डाइवर्ट हो जाएगा माइंड वही चीज में. तो आप कितना भी ट्राई करेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं होगा काम पे कॉन्सेंट्रेशन करने को. तो योर माइंड, बॉडी एंड सोल विल नॉट अलाइन बिकॉज आपका माइंड कहीं और चल रहा है, बॉडी कहीं पे, बॉडी यहाँ पे, माइंड वहाँ पे, सोल उधर ही है.
सोल तो बोल रहा है नहीं रहना ही नहीं है, और बॉडी बोल रही है इधर ही है, मैं हूँ, मैं ओके हूँ, और माइंड बोल रहा है नहीं नहीं, मैजिकल माइंड क्या बोलता है कभी कभी, लॉजिकल मैजिकल, कि नहीं मेरे बच्चों के लिए मुझे रहना है, तो लॉजिकल माइंड है। और ब्रेन बोलता है कि नहीं नहीं मत रहो, और हार्ट बोलता है कि रहो। तो आप एकदम बोलते हैं ना कि आपका माइंड डाइवर्ट, बॉडी डाइवर्ट, सोल डाइवर्ट, तो आप अलाइन नहीं है। तो उनका अलाइनमेंट करने के लिए प्राची मैम अपने पास जो काउंसलिंग सेशन है उसमें उनको कुछ चीजों में करना पड़ेगा, देन ओनली शी कैन गेट सोल्यूशन। मैंने अपने को काफी ना 2020 से शिफ्ट किया, मैंने लेट गो करना और स्ट्रॉन्ग काफी रही हूँ, पर उसमें भी जब इग्नोर करती हूँ तो उसमें भी इशू होता है, गॉसिपिंग और बैकस्टैबिंग। बाई चांस मैं बाहर आई रूम में तो सुना कि ये तो हमारी केयर ही नहीं करती है, टेंशन ही नहीं देती, हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती है। क्यों हम टाइम स्पेंड करें जब लेक्चर ही देना और कमी निकालनी, जो क्रिटिसिज्म सही होता है वो मुझे खुद रियलाइज करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ, पर फालतू के क्रिटिसिज्म थोड़ा वो करूंगी, एनर्जी ड्रेनिंग हो जाती है मेरी। तो आपको आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, आपने बहुत अच्छा, आप खुद ही आंसर दे रही है मैम, आप बहुत टैलेंटेड है, तो आप में इतना टैलेंट है, आप खुद ही खुद के आंसर दे रही है, बिकॉज आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप खुद को अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि मेरे में क्या कमी है और मेरे में ये चेंज करना है, अभी उनके पास एनर्जी देने से अच्छा आपके क्वालिटीज के ऊपर फोकस करो। मुझे ये सिलाई काम अच्छा आ रहा है, ठीक है, मैं इसमें एडवांस कोर्स करूंगी, इंस्टेड ऑफ उनसे बात करना, ठीक है, वो बात करने आएंगे, ठीक है, जितना काम है उतना प्यार से भी रहना है आपको, उनसे आपको पूरा नाता तोड़ना नहीं है किसी से भी, आपको बिकॉज आपकी फैमिली, तो आपको उनको रिस्पेक्ट भी देना है, बट एक हद तक। और आपका खुद का भी सेल्फ एस्टीम डाउन करके रिस्पेक्ट देने से मतलब नहीं, तो आपको डोर मैट भी नहीं बनना है मैम। तो डोर मैट बनने से अच्छा आप खुद का जो है खुद का हीलिंग करो और खुद के ऊपर काम करो और थोड़ा सा, तो आप एक बड़ी सुपर वुमन बन सकती है, बिकॉज आप में क्वालिटीज मुझे अभी दिख रही है प्राची मैम। इसके लिए इमोशनल हीलिंग आप, हाँ आप इमोशनल हीलिंग करिए। स्पिरिचुअल मिशन है, मुझे स्पिरिचुअल मॉडलिटी सीखनी है और उसी में मैं अपना बनाना चाह रही हूँ। तो उस पे आप जितना हीलिंग करोगे, यस, जितना आप खुद का हीलिंग करोगे तो इन लोगों की नेगेटिविटी आपको फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जितना आप अंदर से इमोशनली। अगर मेरे को फेलियर मिलता है ना, तो वो उसमें भी लेग पुलिंग की बड़ा करने चली थी और लो हो गई ना फेल, ये तो नहीं है लाइन चेंज करो, जॉब करो, मेरा जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जबरदस्ती जॉब कर लूँ। That's good, that's good। आपको अगर वो बोल रहे हैं ना आप में ये क्वालिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके अंदर है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। यस यस, तो आपको वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको वो नेगेटिव बना रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल। या मे बी इसको आप पॉजिटिवली ले सकते हो कि ये रोड ब्लॉक्स है, आपको दिखा रहे कि आपको और इम्प्रूवमेंट करना है। सी, ये सब आपको पैर, आपके लेग पुलिंग करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, पर आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है क्या। अगर आप उनका बोलना सच मान रहे हो कि हाँ मेरे पास तो वो क्वालिटी है ही नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अगर आप उनका बोलना अपने अंदर सच मान रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको उनको इग्नोर करना ही पड़ेगा, आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना है खुद के ऊपर, बस वही मैम कर रही हूँ, चाहे कितनी भी वो गॉसिपिंग हो। यस यस यस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फेलियर तो आएगा ही ना। देखिए कौन सा पर्सन फेल नहीं हुआ है आज लाइफ में, सभी लोग सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप है फेलियर। कौन सक्सेसफुल हुआ है एक ही इसमें? आज वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स भी फेल हुए हैं 10 बार 20 बार, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप एक बार फेल हो रहे हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैम 3 बार भी फेल हो रहे तो आगे सीख रहे हैं ना उसी फील्ड में, फिर आगे कभी तो फिर वो स्ट्रेटजी चेंज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं ना। यस, तो वो आपको बोलते रहेंगे। और देखिए आप सक्सेसफुल भी हो, देखिए ऐसा नहीं है कि आप फेल हो रहे हो इसलिए वो आपको बोल रहे हैं, आप कल जाके सक्सेसफुल होंगे तो भी आपको बोलेंगे, बिकॉज सक्सेसफुल होना भी लोगों को सहन नहीं होता है। यस मैम, वो तो वही है ही है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, पीपल विल पुल योर लेग इन बोथ द कंडीशन, इवन इफ यू आर अ फेलियर, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, ये बोलते ही रहेंगे। ये आपको एक्सेप्ट करना है कि ये चलते ही रहेगा, मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। शी इज ओवर एम्बिशियस, शी इज ग्रीडी। मैम कह रही थी 4 पैसे आएंगे लोग खुश होंगे, पर यही नहीं कि मतलब हमारा बेटा ही कमाए, हमारा लड़का ही कमाए, लड़की हमारी बहू ले आएगी तो वही उन्होंने जो कॉस्टिंग की है वो तो कट जाएगी, तो फिर वो झूठे पर दिखाई दे जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको उनको जैसे है वैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और इग्नोर करना है, और अपना इमोशनल हीलिंग आपको करना है, करना ही पड़ेगा।
नहीं तो आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आगे भी और 10 दिन तक या 1 महीने तक या 6 महीने तक आप मुझे यही बोलते रहोगे, आप हीलिंग नहीं करोगे, उनसे बाहर नहीं निकलोगे, आपको ये अपना तो लाइफ बनाना है। खुद ही हम चेंज हो रहे हैं, पर इंसान को वो तो होना चाहिए ना, मतलब कि दूसरे एटीट्यूड चेंज हुआ है तो किसकी वजह से चेंज हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है ना वो। पर हस्बैंड आप सपोर्ट कर एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, हस्बैंड थोड़ा व्हाई बहुत भी यू आर सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपेक्टिंग वो भी फ्रॉम नहीं देम। करता है। 1 मिनट निमिषा, आप एक्सपेक्ट करना बंद करो। आपकी एक्सपेक्टेशन है आपकी मदर इन लॉ से कि वो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो क्लियरली बोल रही है ना आपको, मुझे नहीं करना है तुझे सपोर्ट। व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग, why are you expecting? You are a fool if you are expecting from those people. They can't even Secretly- understand what is healing. So जो you don't have to expect from those people. मैंने क्या बोला अभी तक के सेशन में, क्या बोला मैंने, क्या बोला आपको? जो लोग आपको नीचे गिराते हैं उनको छोड़ दो, यस मैम, ऑलरेडी वो छोड़ दिया, बस छोड़ दो उनको। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, घर के बाहर निकलो, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहो, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। सोल मिशन लाइफ पर्पस सॉल्व करना है, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो नहीं कर पाऊंगी। छोड़ दो उनको, बड़बड़ करने दो, जो बोलना है बोलने दो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे करने दो। आपको अपने अंदर यही बोलना है कि आप वैसे हो क्या, नहीं, वो उनका परसेप्शन है, वो उनकी रियलिटी है। नहीं मैम, खुद तो करे दूसरों से भी करवाते हैं टीम अप होके, तो फिर वो बात भी हो जाती है ना, तो वो चलते ही रहेगा। देखिए ये जो गॉसिपिंग है, ये सब नेगेटिव एनर्जीज है, ये आपको सिर्फ ड्रेन करने वाली है। आपकी रिलेटिव, आपके मदर इन लॉ, जो भी आपके रिलेटिव्स है जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। आप आपके हस्बैंड का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, करने दो, आप अपना काम करो। यू कांट चेंज इफ यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन चेंजिंग पीपल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपका वो पूरा टाइम वेस्ट होगा उनको चेंज करने में। जो एनर्जी आप उनको चेंज करने में डाल रहे हो, वो एनर्जी अपने ऊपर डालो, खुद को एम्पावर करने में के लिए। लाइफ में कुछ तो हासिल करोगे, नहीं तो 1 साल के बाद बोलोगे मैम कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पूरी एनर्जी उनको चेंज करने में लगा दी ना। अब मैम अगर हम अपना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं और सक्सेसफुल हुए और हमारे पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, तो दिखाना कि रॉन्ग एंगल्स की, ये तो ग्रीडी है, ओवर एम्बिशियस है, जलन में, और सीक्रेटली जो खुद करते हैं वो दूसरे को दिखाना कि कंपटीशन, सीक्रेटली कंपटीशन, टॉप जेलसी और ये। हाँ, तो आपको उसके लिए जब वो कोई भी आपको नेगेटिव बोल रहा है, आपको इमोशनली और मेंटली हीलिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको कुछ फर्क ना पड़े सामने वाले। मतलब हस्बैंड सही कर्म कर रहा है तो उसको भी भटकाना, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी कहना कि नहीं मत इसको पैसे वेस्ट करो, ये फालतू की चीजें करती रहती है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको हस्बैंड भी सपोर्ट करेंगे। अभी आपको ये, इसमें से आपने क्या लेसन लिया है आज के सेशन में से, उसको याद रखिए। You have to be with positive people and positive लोगों के साथ रहो। घर में मत रहो, घर में एब्यूसिव एनर्जी है, घर में मत रहो, घर के बाहर निकलो। घर में क्यों रहना है? Yes, ma'am. घर में क्यों रहना है आपको? बाहर निकलो, 10 लोगों से बात करो, अपने विजिटिंग कार्ड दो, अच्छे लोगों से जाके मिलो, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में नहीं रहना है आपको। यस मैम, तभी मैं डेली हाफ आवर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ, तो आपका बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी अवेयर एवरीवेयर, और ये सभी लोगों के लिए है। हर जगह ऐसे लोग रहेंगे जो आपको नीचे खींचेंगे, तो वो आपको अपनी एनर्जी आपको डिसाइड करनी है। इट्स योर चॉइस अल्टीमेटली कि आपको उसके ऊपर ग्रिप करना है या आपको उसमें से बाहर निकलना है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन, या यहाँ पे और भी कोई कुछ रेज कर रहे थे हैंड, आई थिंक समवन एल्स, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? यस, there was someone who was raising the hand. Reshma, Anushka, and yes, anyone is having any questions? No. So I think we have answered all the questions, and thank you Prachi for your precious time. आप अपना आज टाइम निकाल के आए हैं और वुमेन को एम्पावर किया है। जरूर कुछ सीखने को मिला है, इंस्पिरेशन मिला है। यही पॉजिटिव एनर्जी लेके हम सभी लोग अपने साथ जाएंगे और अपने लाइफ में आज 2022 के आपके क्या गोल्स हैं, ये गोल्स आप सभी लोगों को डिसाइड करना है, लिखना है और अपने गोल्स के तरफ जाना है। और गोल्स आपके फिजिकल हेल्थ हो गया, इमोशनल मेंटल हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल गोल्स है आपके,
आपके स्पिरिचुअल गोल्स है, वो गोल्स की तरफ जाइए। जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है आपको। दैट इज व्हाट इज टुडेज मैसेज। राइट डाउन योर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो मच प्राची फॉर कमिंग। और अगले सेशंस में या वी विल बी इनवाइटिंग। यस, बात करते करते जो मैम ने उनकी दिक्कत बताई तो मैंने वो अंडरस्टैंड किया। ऑब्जर्व, आपकी बातें चल रही थी दोनों की, तो मैं अंडरस्टैंड करी थी। उनके लिए मैंने कुछ प्रे किया, दिल से प्रे किया। तो उनको बोलिए नेक्स्ट सेशन में आपका ये सब खत्म होने वाला है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी Yes. जी जो बोल के करके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैम के अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, होप, Yes. इक्वालिटी एंड इंट्यूशन। माय इंट्यूशन इज सेइंग शी इज गेटिंग गुड वाइब्स एंड Yes. आई हैव प्रेड फॉर हर फ्रॉम माय सीट एंड साईं बाबा इज बिसाइड्स मी। सो Yes. आई थैंक प्रे यू मैम। उनकी लाइफ में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए कि उसको काम कर रहे हैं पर उसको हर्डल आ रहे हैं। तो भगवान डिवाइन ऐसी पावर भेज रहे हैं हमें। यूनिवर्स में इतनी सारी पावर है, उसे यूटिलाइज करो। उनको पूछो, मदद मांगो यूनिवर्स से, गॉड से, अल्लाह से, जीसस से, जो भी आपके कोई धर्म गुरु है उनसे मदद मांगो कि मैं ऐसी चीज में हूँ, मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ। भगवान आके आपकी मदद जरूर करेंगे। गॉडेस दुर्गा आएगी, गॉडेस सरस्वती, गॉडेस सीता माँ खुद जमीन में उनको लेके गए, धरती माँ में उनको लेके गए, क्योंकि डिविनिटी थी उनमें। डिविनिटी थी, इसके लिए उन्होंने मदर अर्थ ने उनमें समाया। तो हम लोग सब गॉडेस है, गॉडेस आपके अंदर है। यू हैव टू डिवाइन, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डिवाइन पावर, देन यू कैन बिकम अ गॉडेस दुर्गा, गॉडेस सरस्वती। ईच एंड एवरी देवी इज इनसाइड यू। तो आप खुद देवी, आपको अंडरस्टैंड करना है खुद का पावर। प्राची मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। God bless all wonderful ladies. Yes. Thank you, ma'am, for Yes. praying me. Thank Thank you, you, ma'am, for thank you. praying me. So sweet Yes. of you. Yes. So we will stand for Vande Mataram. और Yes. थैंक यू मैम। वुमेन एम्पावरमेंट में हम स्पिरिचुअल वर्कशॉप भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी लेडीज है, दुर्गा एम्पावरमेंट की वर्कशॉप हम लॉन्च करेंगे। जैसे प्राची ने अभी बोला कि हर नारी के अंदर वो दुर्गा की शक्ति है, तो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा उस वर्कशॉप में आपके अंदर एक्टिवेट होगी, जिससे कि ये सारी जो नेगेटिविटी है, आप जल्दी अफेक्ट हो रहे हो लोगों से, ये सब आपका जाएगा और आपकी पावर बढ़ेगी। So that's what I invite all the ladies in Durga Empowerment Workshop. I will be sending the dates and everyone join and increase your power as a woman. आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी जब बढ़ेगी, आपको जिंदगी में कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो everyone stand for वंदे मातरम। We will just pray कि इस पूरे भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी हम एम्पावरमेंट मिले और वो पहचान के साथ जुड़े। और एक आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि जिन जिन लेडीज को प्रॉब्लम्स है, काउंसलिंग के लिए आप उनको बुला सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। वी हैव जस्ट अ नॉमिनल, वी आर टेकिंग अ नॉमिनल मेंबरशिप फीस ऑफ 1000 रुपीज। और इसमें हम लेडीज को काउंसलिंग भी करेंगे। और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनको इन सेशंस में बुलाइए, उनके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व होंगे, उनके लाइफ में उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। तो कोई भी लेडीज होंगे आपके घर के आसपास, जस्ट कॉल देम हियर, गेट देम एम्पावर्ड एंड हेल्प देम। ओके। और प्राची मैम, अपना जो एक प्रोग्राम रखने वाले हैं जो पुणे में बहुत बड़ा था, यस तो यस उसके लिए भी जब हमारा डिसाइड होता है डेट होता है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल दिस आवर लवली लेडीज। यस 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 वी विल। यस, पहचान का। जी जी जी, यस यस। So we will be keeping some business meetings and also other programs, and I will be sharing the videos and the messages. So everyone stand for Vande Mataram. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन
Thank you all ladies for joining. Be inspired and inspire others. Thank you so much. श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव I will end the session. Next sessions will be there on other topics. We will be calling other women who are experts in that particular field. Thank you so much. Bye bye. Take care. Ma'am, can we take group selfie? Okay. Yes. Sure. Please. Yeah. All please switch on your cameras. आपका कैमरा सबको देखना है हमें. Yes. आ रहा है. एक प्राची आप ले लीजिए. जस्ट चेक ये कर लीजिए आपके इसमें. आई एम हैविंग सम इश्यूज. नहीं मेरे इसमें थोड़ा इशू हो रहा है. एक मिनट. अरे एक मिनट. I have recorded the video. Recording is there. I will share with you. We can take ठीक from है, there. record. Okay. Yes. So thank you, Anushka. Thank you so much. Thank you, Prachi. Bye bye. Take care. Be inspired and inspire others. Bye bye. Yeah.